If you start off with a low growth and we hope we can end up, let's say at 9% by the end of the 12th plan, we're not going to have 9% during the 12th plan. And the plan has given an assessment that we think that with a lot of hard work and a lot of taking tough decisions, and I think the diesel price hike yesterday is one of those tough decisions, but we need a lot of tough decisions. I think we can reach 8.2, and I think it will be inclusive. You know, the plan document also points out that our record on both growth and inclusiveness is actually quite good. मोंटेक सिंह अहलूवालिया जिन्होंने कहा कि दाम बढ़ाने का फैसला कड़ा था लेकिन ये कदम जरूरी था। वापस चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मैं कहूंगा लेकिन इसका मतलब स्टेट्स पे आपके क्वेश्चंस खत्म है। देयर इज नो अदर। इसमें आपने कहा कि कई सारे और डिसीजन लेने पड़ेंगे, वो कौन-कौन से डिसीजन ऑन द कार्ड है? और क्या लगता है कि आपको टफ डिसीजन था डीजल प्राइस? अब देखिए ये let me answer a question on diesel prices. You asked the question. You know, if a government, any effort to raise the price always creates a problem, because whoever has to pay more, he feels or she feels that they are being made to pay more. I think we should not have an impression that not raising diesel prices is a costless option. The real question is, could the government have afforded not to raise diesel prices? You know, my respectful view on this is no. Planning Commission has set up many committees. Kirit Parikh's committee was set up. The Integrated Energy Policy Committee was set up. Chaturvedi Committee was set up to look into the question. And I think the consensus here is that general purpose fuel should not be subsidized. Targeted subsidy for those who need it is justified. That is why yesterday the government has said up to 6 cylinders of LPG will be available at the present price. They have not changed the kerosene price. Diesel is a general purpose input into all economic activity. And quite frankly, to say that we should not have raised the diesel price amounts to saying one of two things. Either that the budget will bear the deficit burden, in which case the plan would have to be cut, or it is saying, let us starve the petroleum sector companies. That will be a disaster. Because frankly, I think we should realize country is moving into a situation where energy security is very important. We need both to economize on energy, and it's very difficult to economize on energy if the price of energy is kept low. The second is we must put resources into exploration, development and production. And it's very difficult to do that if you allow the companies to bleed. So quite frankly, the Planning Commission has consistently held the view that we must move towards a greater alignment between petroleum prices and world prices. Anything else is actually going to condemn the country to a low growth rate. So I'm very glad that the government has taken this step. It is still, by the way, not a complete deregulation. Planning Commission view has been in the past, both petrol and diesel should be deregulated. It has to be done in steps, and I think what they've done, taken a very important step. Okay? हिंदी में अच्छा चलिए नहीं जैसे मैंने अभी कहा अगर सरकार डीजल की प्राइसेस ना रेज करने के छोड़ सकती और उससे और कोई बुरा इफेक्ट नहीं होता तो फिर तो कई लोग कह सकते थे कि क्यों रेज की। लेकिन सच ये है कि डीजल की जो प्राइस थी बहुत ही लो थी और उसके कारण बहुत हेवी या तो सब्सिडी बढ़ जाती या जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाती। और मुझे लगता है कि अगर सब्सिडी बढ़ जाती तो इसका ये मतलब होना था कि प्लान एक्सपेंडिचर कट जाता या हेल्थ में या एजुकेशन में या रूरल लाइवलीहुड्स में, और अगर सब्सिडी बढ़ जाती तो फिस्कल बैलेंस बहुत ही खराब हो जाता। और आज के जो माहौल है इंटरनेशनली हर एक कंट्री को लोग देख रहे हैं कि फिस्कली ये कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी सब्सिडी डीजल पेट्रोलियम पे रन करनी ये वायबल नहीं थी। तो जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं ठीक लिए हैं। सर आगे कौन
इसका महंगाई पर कितना असर पड़ेगा, प्राइसेस पर, इन्फ्लेशन पर इसका कितना असर आप देख रहे हैं डीजल प्राइस में? देखिए, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन इन्फ्लेशन को एक प्राइस से जोड़ना गलत है। अगर एक प्राइस को बढ़ाना जरूरी है तो ओवरऑल इन्फ्लेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए मैक्रो पॉलिसी चाहिए होती है। डीजल की प्राइस तो बढ़ जाएगी, लेकिन दूसरी प्राइसेस ये जरूरी नहीं है कि बढ़ेंगी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे इसका काफी इम्पैक्ट ऑलरेडी असर दिख रहा है। नहीं, इस सेपरेट डिस्कशन करनी चाहिए डिटेल में, लेकिन ये मैं आपको जरूर कह रहा हूं कि अगर डीजल प्राइस बढ़ जाए तो उस टाइम पे एक दो प्राइसेस हो सकती हैं बढ़ जाएंगी, लेकिन ये कहना कि डीजल प्राइस को लो रखिए, सब्सिडी को चलाते रहिए, पेट्रोलियम कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर दो और इसके लिए इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, ये गलत है। तो फिस्कल डेफिसिट आप कितना कम होता देख रहे हैं इस डिसीजन की वजह ये हमने ये कैलकुलेट नहीं किया। पेट्रोलियम और फाइनेंस मिनिस्ट्री को आपको पूछना चाहिए। उन्होंने न्यूज़पेपर्स में बताया गया है कि इसका टोटल इफेक्ट क्या होगा, लेकिन इसका फुल ईयर इफेक्ट देखना पड़ता है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि प्रिंसिपल है कि प्राइस को डी कंट्रोल कर। अगर आप कहें कि डीजल प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए, कल कुछ होता है वर्ल्ड प्राइसेस में, अगर ऑयल प्राइस बढ़ जाए तो $150 तो उसी प्राइस पे हम लगे रहेंगे। हमारा कहने का ये मतलब है कि आपको ऑयल प्राइस को डी रेगुलेट करना ही पड़ेगा। दूसरे देशों में जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है यही कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्राइस एडजस्ट होती है, ये ठीक है, 100% नहीं होती, अगर बहुत बढ़ गई तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कि अगर वर्ल्ड प्राइसेस हाई हैं तो हमें भी एनर्जी प्राइसेस को हाई रखना चाहिए, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीजी पे जो कैप लगाया है, Yeah, these are not 12th plan issues. Now you are into. Well, Jaipal ji will be explaining all this at his press conference. Why are we bothering? Yes. I would. Now, it's a very good question. I wouldn't want to prejudge what the RBI will do, but there's no doubt in my mind that the adjustment in diesel prices represents a creation of fiscal space. One of the problems people earlier felt was that the fiscal situation of the country lacked credibility because there was a sort of an impression that diesel prices cannot be raised, whatever happens. The signal that has been given is therefore a good one. I hope the RBI will be able to factor that into account. I'm sure they will factor it into account. But it is creating some fiscal space, no doubt about it. And I'm glad the same fiscal space could have been created in two other ways. One is to raise taxation. I'm glad we've not done that. And the other is to cut plan expenditure, and I'm glad we've not done that. I think we've done the right thing. The rest is up to the RBI. Sorry? Well, I have no doubt whatsoever that any rating agency, when they look at an economic situation, they look at it in terms of its dynamics. So anyone looking, the big problem earlier was the perception that the government of India will never be able to raise diesel prices. That was not just a static perception. The danger was that people thought that if world prices go up, which they can easily do for a variety of reasons, the government of India... एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि दाम बढ़ाना जरूरी था, कुछ कड़ा फैसला लेना जरूरी था और उसी के तहत दाम डीजल के बढ़ाए गए हैं। बल्कि वो तो एक कदम और आगे जाके कह रहे हैं कि सरकारी नियंत्रण भी हटा दिया जाना चाहिए डीजल के ऊपर। कड़े फैसले लेंगे तभी 8.2% की विकास दर हासिल की जाएगी और उन्हीं कड़े फैसलों के चलते ये कदम भी उसी फहरिस्त का है, उसी लिस्ट का है। और अब ये कदम उठाना जरूरी हो गया था कि डीजल पर जो सब्सिडी दी जा रही थी उसे कम किया जाए और इसलिए दाम बढ़ाना पड़ा और दाम बढ़ाने का ये कड़ा फैसला जरूरी था। ये है कि डीजल की जो प्राइस थी बहुत ही लो थी
और उसके कारण बहुत हेवी या तो सब्सिडी बढ़ जाती या जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाती। और मुझे लगता है कि अगर सब्सिडी बढ़ जाती तो इसका ये मतलब होना था कि प्लान एक्सपेंडिचर कट जाता, या हेल्थ में या एजुकेशन में या रूरल लाइवलीहुड्स में। और अगर सब्सिडी बढ़ जाती तो फिस्कल बैलेंस बहुत ही खराब हो जाता। और आज के जो माहौल है इंटरनेशनली, हर एक कंट्री को लोग देख रहे हैं कि फिस्कली ये कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी सब्सिडी डीजल पेट्रोलियम पे रन करनी ये वायबल नहीं थी। तो जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं ठीक लिए हैं। सर आगे कौन कौन सी महंगाई पर कितना असर पड़ेगा, प्राइसेस पर, इन्फ्लेशन पर इसका कितना असर आप देख रहे हैं डीजल प्राइस हाइक? देखिए, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन इन्फ्लेशन को एक प्राइस से जोड़ना गलत है। अगर एक प्राइस को बढ़ाना जरूरी है तो ओवरऑल इन्फ्लेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए मैक्रो पॉलिसी चाहिए होती है। डीजल की प्राइस तो बढ़ जाएगी, लेकिन दूसरी प्राइसेस ये जरूरी नहीं है कि बढ़ेंगी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे इसका काफी इम्पैक्ट ऑलरेडी असर दिख रहा है। नहीं, इस सेपरेट डिस्कशन करनी चाहिए डिटेल में। लेकिन ये मैं आपको जरूर कह रहा हूं कि अगर डीजल प्राइस बढ़ जाए तो उस टाइम पे एक दो प्राइसेस हो सकती हैं बढ़ जाएंगी, लेकिन ये कहना कि डीजल प्राइस को लो रखिए, सब्सिडी को चलाते रहिए, पेट्रोलियम कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर दो और इसके लिए इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, ये गलत है। तो फिस्कल डेफिसिट आप कितना कम होता देख रहे हैं इस डिसीजन की वजह ये हमने ये कैलकुलेट नहीं किया। पेट्रोलियम और फाइनेंस मिनिस्ट्री को आपको पूछना चाहिए। उन्होंने न्यूज़पेपर में बताया गया है कि इसका टोटल इफेक्ट क्या होगा, लेकिन इसका फुल ईयर इफेक्ट देखना पड़ता है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि प्रिंसिपल है कि प्राइस को डी कंट्रोल कर। अगर आप कहें कि डीजल प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए, कल कुछ होता है वर्ल्ड प्राइसेस में, अगर ऑयल प्राइस बढ़ जाए तो $150 तो उसी प्राइस पे हम लगे रहेंगे। हमारा कहने का ये मतलब है कि आपको ऑयल प्राइस को डी रेगुलेट करना ही पड़ेगा। दूसरे देशों में जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है यही कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्राइस एडजस्ट होती है, ये ठीक है, 100% नहीं होती, अगर बहुत बढ़ गई तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कि अगर वर्ल्ड प्राइसेस हाई हैं तो हमें भी एनर्जी प्राइसेस को हाई रखना चाहिए, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि डीजल की जो प्राइस थी बहुत ही लो थी और उसके कारण बहुत हेवी या तो सब्सिडी बढ़ जाती या जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाती। और मुझे लगता है कि अगर सब्सिडी बढ़ जाती तो इसका ये मतलब होना था कि प्लान एक्सपेंडिचर कट जाता, या हेल्थ में या एजुकेशन में या रूरल लाइवलीहुड्स में। और अगर सब्सिडी बढ़ जाती तो फिस्कल बैलेंस बहुत ही खराब हो जाता। और आज के जो माहौल है इंटरनेशनली, हर एक कंट्री को लोग देख रहे हैं कि फिस्कली ये कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी सब्सिडी डीजल पेट्रोलियम पे रन करनी ये वायबल नहीं थी। तो जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं ठीक लिए हैं। सर आगे कौन कौन सी महंगाई पर कितना असर पड़ेगा, प्राइसेस पर, इन्फ्लेशन पर इसका कितना असर आप देख रहे हैं डीजल प्राइस हाइक? देखिए, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन इन्फ्लेशन को एक प्राइस से जोड़ना गलत है। अगर एक प्राइस को बढ़ाना जरूरी है तो ओवरऑल इन्फ्लेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए मैक्रो पॉलिसी चाहिए होती है। डीजल की प्राइस तो बढ़ जाएगी, लेकिन दूसरी प्राइसेस ये जरूरी नहीं है कि बढ़ेंगी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे इसका काफी इम्पैक्ट ऑलरेडी असर दिख रहा है। नहीं, इस सेपरेट डिस्कशन करनी चाहिए डिटेल में। लेकिन ये मैं आपको जरूर कह रहा हूं कि अगर डीजल प्राइस बढ़ जाए तो उस टाइम पे एक दो प्राइसेस हो सकती हैं बढ़ जाएंगी, लेकिन ये कहना कि डीजल प्राइस को लो रखिए, सब्सिडी को चलाते रहिए, पेट्रोलियम कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर दो और इसके लिए इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, ये गलत है। तो फिस्कल डेफिसिट आप कितना कम होता देख रहे हैं इस डिसीजन की वजह? ये हमने ये कैलकुलेट नहीं किया। पेट्रोलियम और फाइनेंस मिनिस्ट्री को आपको पूछना चाहिए। उन्होंने न्यूज़पेपर में बताया गया है कि इसका टोटल इफेक्ट क्या होगा, लेकिन इसका फुल ईयर इफेक्ट देखना पड़ता है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि
प्रिंसिपल है कि प्राइस को डी कंट्रोल कर। अगर आप कहें कि डीजल प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए, कल कुछ होता है वर्ल्ड प्राइसेस में, अगर ऑयल प्राइस बढ़ जाए तो $150, तो उसी प्राइस पे हम लगे रहेंगे। हमारा कहने का ये मतलब है कि आपको ऑयल प्राइस को डीरेगुलेट करना ही पड़ेगा। दूसरे देशों में जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है यही कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्राइस एडजस्ट होती है। ये ठीक है 100% नहीं होती, अगर बहुत बढ़ गई तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कि अगर वर्ल्ड प्राइसेस हाई हैं तो हमें भी एनर्जी प्राइसेस को हाई रखना चाहिए, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है।